निकाल लो अमेंडमेंट। ये वैसे argument in the majority opinion in the practice and procedure, this has been responded to in the majority opinion, which has held that a full court is necessary because the issue deals with the Supreme Court and its practice and procedure, its jurisdiction, so the collective wisdom. My lord, I have mentioned it is prudent. वहाँ भी यही लिखा है. I'll cite my lord, It is prudent to constitute a full court. आपकी minority. So that means the majority opinion recognizes the convention of full court and the distinction between a bench and a full court. It is settled by the majority opinion. I agree with this proposition. There is a full court, but the only question is whether full court could be considered as bench or not. ये issue. मैं कहता हूँ नहीं, full bench नहीं होगा क्योंकि my lord आपने जो उसमें कहा है. सॉरी जी, ये जब फुल कोर्ट डायरेक्ट बन गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, एंड द हियरिंग वाज स्टार्टेड बाय द फुल कोर्ट, ठीक है, then during course of argument this point was raised that there is an also provision of intra-court appeal. If the full court decide where the intra-court appeal will be heard. So the full court continued and culminated the hearing, and finally it was decided. In my note, while taking into this argument into consideration, I write that this is the collective wisdom. If the full court in any judgment, obviously then there is no question of intra-court appeal when the all judges have collectively decided some cases. ठीक है, तो ये पहले इंट्रा-कोर्ट अपील उस वक्त जहन में नहीं थी किसी के भी. वो बेंच बन गई थी, बेंच की स्टार्ट हो गई. ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सम ऑफ द काउंसिल. We raised this point, जी. ठीक है ना, तो वो तो पहले ऑलरेडी बेंच बन गई. उसी में सर अगर आप इजाजत हो, आप इजाजत देंगे तो माय लॉर्ड्स जस्टिस आयशा मलिक्स जजमेंट. I agree. जो बात इन्होंने पैरा 47, 48 मेरे ख्याल से वो किताब में रिपोर्टेड नहीं है. आई होप आपके सामने वो आ जाए, क्योंकि जो रिपोर्टेड मैटर्स ओनली मेजॉरिटी जजमेंट आई है. माइनॉरिटी जजमेंट्स हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन PLJ. जो आपकी तो हुई है लेकिन माइनॉरिटी जजमेंट्स नहीं हुई है, जैसे शाहिद वहीद की. वो अलग से एक बुक अगर आप माइनॉरिटी नहीं, डिसेंट सॉरी, Dissenters have not been published. Not the majority. I apologize sir. लेकिन ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि पूरी जजमेंट आई. We're still debating whether that's part of the judgment or not. You see? So आपने my lord has said in para 47 and 48 of that dissenting judgment that it is collective wisdom because appeal का right is being. मुझे नहीं पता, मैं sorry, I have not heard the. मैं पढ़ के मैं सुना दूंगा आपको my lords का जो अगर उन्होंने लिखा है कि ये collective wisdom है, collective wisdom का यूज किया my lord ने para 47. हमने भी किया है ना, आपने भी किया, लेकिन आपने कहा collective wisdom के बाद full court नहीं हो सकता, मतलब अपील नहीं हो सकती. My lord has said कि ये अपील का प्रोविजन होना चाहिए. कि very first day immediately after taking oath, the then chief justice constituted the full court for hearing the practice. बिल्कुल सर. तो वो शुरू में 8 मेंबर बेंच थी, वो बाद में वो जब स्टे हुआ था उस वक्त वो 8 थी, फिर वो फुल बेंच उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया वेरी फर्स्ट डे जिस दिन वो बैठना शुरू हुआ. आगे इसको कंप्लीट कर लूं जो आपने कहा था कि किस तरह से फुल कोर्ट बनता है. अगर आपके ये दे दें, ये 2019 SCR जस्टिस फाइज ईसा का जो केस है, 2019 SCMR निकाल दिया जी, जिसमें हमने कहा पेज 18 दिस इज page 1875 and relevant portion my lord will find at page 1879 paragraph 7. इसको लिखा ये बात सुन, ये और कहीं और, ये कहीं और पब्लिश नहीं हुई. ये वाली जजमेंट इधर ही है, इसमें वो जो मेजॉरिटी ओपिनियन शाह साहब वाली है वो भी नहीं है. कैसे उन्होंने am I with your lordship sir? जी my lord, may I read it? कहाँ से पढ़े? जी पैरा 7 सर. ओके प्लीज. इसके ऊपर पहले सारा डिस्कशन हुआ सर. अगर आप पेज 1877 पे देख लें, व्हाट वाज द एप्लीकेशन. लर्नड काउंसिल ये शुरू जो हो रही है जहां माय लॉर्ड the judgment starts at page 1877 para 1. Learned counsel for the petitioner
has at the outset argued the CMA number so and so, seeking the constitution of full court comprising eligible judges for hearing of the constitution petition number 17 of 2019. To explain the expression eligible judges, Learned Counsel has with utmost respect requested that learned judges on the bench who may possibly benefit from the dismissal of this petition should kindly recuse from the proceedings. He emphasized the possibility of being swayed by any consideration of personal advantage is a ground for recusal under Article 4 of Code of Conduct of Judges of the Supreme Court and the High Courts of Pakistan. He acknowledges that dismissal of this petition by the court cannot by any means entail an adverse recommendation to the President of Pakistan under Article 209 of the Constitution against the petitioner. Nevertheless, the legal community and public perceive that a personal advantage would accrue to the ineligible judges in the year 2023 in case the petitioner did not assume the office of Chief Justice of Pakistan. He relied upon Asad Ali Federation of Pakistan, sir, and read the portion. ये मैं पढ़ चुका हूँ सर आपको. I have not read it. I have read this portion from the judgment. They are Pinochet के जनरल Pinochet का केस साइट करते हैं सर, जिसमें लॉर्ड हॉफमैन के ऊपर इल्जाम लगा था. 22 के लिए था. जी 22 के लिए था, क्योंकि जैसे लॉर्ड हॉफमैन की वाइफ जो थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की मेंबर थी, तो उन पे इल्जाम लगा. वो जजमेंट भी सेट असाइड हो गई थी. Pinochet 1 and Pinochet that's reported. My lord is well aware of that. फिर that independent media का जिक्र है. Corporation of Federation Pakistan. What does this term eligible judge mean? जी एलिजिबल जज जो किसी पर्सन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से या फाइनेंशियल जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आता है, वो उस वजह से यहाँ आर्ग्यू कर रहे थे. वो कुछ दो जजों पे एतराज किया गया इसके केस माय लॉर्ड मिसेस जस्टिस फाइजीसा के केस में कि दो जजेस, क्योंकि अगर ये चीफ जस्टिस नहीं बनते और इनको सुप्रीम जुडिशल तो उनके लाइन में दो जजेस आ रहे थे, जस्टिस एजाज और एहसन, जस्टिस तारिक मसूद सर. तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को बेंच पे नहीं बैठना चाहिए. कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि ये गलत उन पे की बात कर रहे हैं कि आप 4 साल के बाद ये इशू आएगा 2019 थी सर. तो लेकिन फिर भी उन दोनों जजों ने जब उनके ऊपर एतराज किया गया, दे चोज नॉट टू सिट ऑन द बेंच माय लॉर्ड. ये इसका बैकग्राउंड था. तो एलिजिबल जजेस वो कह रहे थे कि जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, कहते हैं इनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, कोर्ट कहता ही नहीं है ये पर्सनल इंटरेस्ट, बट दोज जजेस इन देयर विजडम डिसाइडेड नॉट टू सिट माय लॉर्ड. पैरा 7 तो पढ़ी. जी पैरा 7 सर. In the circumstance to further promote transparency in the proceedings and confidence of all persons interested in these proceedings, it is directed kindly sir, आप कहते direct कैसे कर सकते? The word used is directed that the full court may be constituted in these connected matters. The file may be placed before the Honorable Chief Justice of Pakistan, passing appropriate orders adjourned. So it was sent to the, it was directed sir. डायरेक्ट को नीचे आके डायरेक्शन खत्म हो गई. नहीं सर, ये ना दोबारा. नहीं डायरेक्शन आपने डायरेक्ट कर दिया. It is directed that full court may be constituted in these connected matters. The file may be placed before the Honorable Chief Justice of Pakistan for passing appropriate orders. For constituting a full bench, full court. Appropriate order के लिए क्या है? Full court sir, क्योंकि देखिए उनका ये जुडिशियल ऑर्डर था, डायरेक्ट कर दिया गया था. अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस विद utmost respect could not say कि नहीं, और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स ये थे उनसे ऑर्डर ले लो कि फुल कोर्ट बनाएं. ये नहीं होता कि वो डिसाइड कर आफ्टर जुडिशियल ऑर्डर कुड द चीफ जस्टिस से आई एम नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग द फुल कोर्ट. In the changed circumstances, whether the chief justice is entitled to constitute the full court. मेरी हम्बल सबमिशन होगी, आई विल एड्रेस योर लॉर्डशिप पे व्हाई कमेटी नहीं हो सकती. मेरा पहला आर्गुमेंट यही होगा कि चीफ जस्टिस का पावर है. सेकंड होगा कि आई विल कम टू द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का सेक्शन 2 पे सर, व्हेन आई एड्रेस योर लॉर्डशिप ऑन दैट. अब आपने क्या कहते हैं कि आज भी चीफ जस्टिस जी बिल्कुल जी, बिकॉज फुल कोर्ट पास करने की पावर, देखिए बेंचेस बनाने की पावर कमेटी के पास है. विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सर, दोनों आप देखिए आपके रूल्स भी कहते हैं, जब नए रूल्स आपने अडॉप्ट किए 2025 में, आपकी भी और सबके रूल्स है कि ये बेंचेस बनाते हैं. शरीयत कोर्ट की बेंच बनती है सर, और मैं आप उस पर आ रहा हूं कि अब आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपकी जजमेंट आने से पहले एक चीज मैं कंप्लीट करना चाहता हूं कि कहां जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरा 184, 185, 186, 188 वर्ड यूज है सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. यहां आ गया कि बट अगर बेंच बनेगी, अगर इन तीन चीजों पे 84, 85 जो इंटरप्रिटेशन आता है और 86 में अगर ये बेंच के सामने आएगा तो ओनली एंड ओनली दिस ऑनरेबल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 की या उससे ज्यादा जो भी बनाए आप, मिनिमम 5 होने चाहिए, उसके पास जुरिसडिक्शन होगी. रेगुलर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिसडिक्शन नहीं होगी. लेकिन ये कहीं पाबंदी नहीं है कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता. बिकॉज ये जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है माय लॉर्ड, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पे भी हेडन वर्ड्स में एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ही इज आल्सो द आउटकम ऑफ द 26th बिल्कुल जी.
फिर इस बेंच पे भी है, फिर हमारे बाद आने वालों पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या ये कोर्ट डायरेक्टली एक ऑर्डर कर सकती है टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच, फुल बेंच, बाय पासिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड बाय पासिंग द कमिटी? I'm grateful to your lordship's kind question. देखिए माय लॉर्ड, आप जो ऑर्डर पास करेंगी वो होगा जुडिशियल ऑर्डर. आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो जुडिशियल होगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेंच या फुल कोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सर. वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है. अब ये हमें आपको देखना है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है टू कॉन्स्टिट्यूट द फुल कोर्ट. या कमेटी के पास है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास अभी भी वो पावर है, डिस्पाइट द फैक्ट अब ही इज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ द रोस्टर. क्योंकि माय लॉर्ड जस्टिस फाइज की जजमेंट में था देयर इज नो मास्टर ऑफ रोस्टर का जिक्र ही नहीं है, ना आइन में है ना रूल्स के अंदर है, कहीं नहीं लिखा हुआ मास्टर ऑफ द रोस्टर है. यही जस्टिस फाइजा की जजमेंट है उसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में. बट माय लॉर्ड हैज जस्टिस मजहर हैज रिटन विद द हेडिंग मास्टर ऑफ द रोस्टर. उसमें पूरा मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं माय लॉर्ड्स जजमेंट. तो ये देखिए आपके ऊपर हो गया कि किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है. लेकिन आपके पास जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहां भी देखिए जस्टिस फाइजा के केस में एक डायरेक्शन इशू हुई. डायरेक्शन इज टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, क्योंकि उस वक्त वो हेड थे, उनके पास ही सारी पावर्स थी अंडर द रूल्स टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेस. तो उन्होंने कन्वेंशन ये था कि जो जिसके पास पावर होती है तो कॉन्स्टिट्यूट द बेंच, वही पावर एक्सरसाइज करेंगे टू फॉर्म द फुल कोर्ट. इस वजह से ये हर केस आप में तो अभी भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस करेगा ना, डिस्पाइट कमेटी. कमेटी को क्या रोल हो गया? नहीं, अगर जुबैरी साहब, वो भी हेड चीफ जस्टिस ही करेंगे सर. जुबैरी करेंगे, साहब, but three चीफ members- जस्टिस साहब पे ऑब्जेक्शन है, हम पे ऑब्जेक्शन है, तो फिर अगर हमारे पे ऑब्जेक्शन है तो हम किस तरह ऑर्डर नहीं सर, करेंगे? मैं आप प्लीज I'm stumbling before your worship. मैं कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं मेरी दरखास्त सिर्फ आपके सामने इस वक्त है कि इंपॉर्टेंस और ट्रांसपेरेंसी और सारी इसकी वजह को जो आप लोगों ने खुद ही जजमेंट्स के अंदर कि क्यों फुल कोर्ट होना चाहिए. इसको दूसरे अंदाज में ले ले. चले जी. मैं मैडम के क्वेश्चन को फर्दर देखिए. हम यहाँ बैठे हुए एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हमें 191A4 के तहत एक कमेटी ने हमें बेंच बना दिया. बिल्कुल. और हमारी जुरिस्डिक्शन वेरी लिमिटेड. सब आर्टिकल 3 में बताया गया कि हम ये इन बातों पे डिसीजन दे सकते हैं. नहीं सर, आप बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं. आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. नंबर 2 ये जी कि क्या हम ये चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इनको छोड़ दो, इनको लगा दो? तो डायरेक्ट हम क्यों ना कह दें कि मिस्टर सो को ऑर्डर भिजवा दें. मैं ये नहीं कह रहा हूं. मेरे दो टू हम्बल सबमिशंस बिफोर योर लॉर्डशिप. एक तो आपके पास जुरिस्डिक्शन है to refer the matter for the constitution by passing a judicial order for the constitution of the full court. अब ये उसके ऊपर है कि वो किसका फुल कोर्ट क्या होता है. एलिजिबल जजेस, वो देखना होगा कि एलिजिबल जज कौन होते हैं, जैसे इसकी जजमेंट में कहा गया है. तो ये आप माय लॉर्ड्स की जजमेंट है कि व्हाट इज द मीन. पहले आप पढ़ लीजिए, जजमेंट पढ़ लें तो we should move ahead. जी सर, मैं जो अर्ज कर रहा था सर कि 184, 185 वर्ड यूज हुआ है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 176 इज दी चीफ जस्टिस एंड सदर जजेस जो अपॉइंट होते हैं सर. अब आप ये जो बेंच, लेकिन क्या फर्क आया 191A में सर? उसमें अब ये जुरिस्डिक्शन टू हियर इन 3 चीजों के ऊपर जुरिस्डिक्शन दे दी गई. क्योंकि देखिए सर, जुरिस्डिक्शन इज वेस्टेड इन दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 175(2). माय लॉर्ड हैज आल्सो डिस्कस. और फिर वो रशीद का क्या. अच्छा, मैं अब इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कहां रिस्ट्रिक्ट की जाती है सुप्रीम कोर्ट की पावर. अगर ये होता नो अदर जज. भी यहीं पर क्वेश्चन ले लीजिए ताकि जी, हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 member bench, जी सर. a case is fixed before us My lord. by the committee constituted under 191A3. A regular case is fixed before the bench. जी. We cannot hear that case. नहीं सर, आप नहीं, क्योंकि आपके मैं वो जजमेंट में लिखा हुआ, आपकी जजमेंट में साइड करूंगा, आप भेजेंगे उसको रेगुलर बेंच. और रेगुलर बेंच को भेजना है आपके पास सर. बिल्कुल यही आपकी जजमेंट है सर. This is the bilateral जी. composition of बिल्कुल committees. यही आपके दीवान मोटर्स का केस है. Role of the two committees. कमिटीज rather. का जी. they have वो जो केस रेगुलर का है वो एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम नहीं. आपने आप जो जजमेंट है आपकी जो मैं साइड करूंगा उसमें आपने एग्जांपल्स दी हुई है कि हमारे पास केस आया आपकी कमिटी में हेडेड बाय माय लॉर्ड्स. उसमें आपने कहा नहीं हमारा केस नहीं है, आपने
आपने भेज दिया, फिर वहां के कुछ केस थे उन्होंने रेफर कर दिया, इवन दीवान मोटर्स का केस में उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आर इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई माय लॉर्ड सेड कि बेंच जो है वो सिर्फ ये बेंच सुन सकती है सर। आई विल कम टू दैट सर। तो मैं एक चीज दिखा लूं जी आपकी इजाजत, सॉरी आप कुछ कह रहे थे सर। वो बेसिक क्वेश्चन वही है बिल्कुल सर। jurisdiction, then why don't you apply it to the Chief Justice for Constitution? सर हमने आपके सामने, क्योंकि केस आपका है, आप देखिए जहां भी केस चलता है उसके सामने एप्लीकेशन दी जाती है, तो हम जो भी आपने केस देखा जस्टिस फाइज जी सर जितने केसेस आए वो उसी बेंच के सामने एप्लीकेशन दी गई। इनडायरेक्टली आप इस बेंच पे लीगल ऑब्जेक्शन आपका ये है कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ठीक, ये सुन तो सकता है लेकिन सुनना नहीं चाहिए। नहीं मेरा ये बिल्कुल नहीं है। नहीं देखिए 184(3) है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुन सकता है जी। उसमें क्या नो अदर बेंच, लेकिन आप चूंकि इसलिए इतराज करें, बाकी केसेस में तो आपने इतराज नहीं किया, पेश होते रहे हमारे सामने, अभी भी आगे इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी पेश होते रहे। आप कहते हैं चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर चैलेंज है जी। इसलिए ये बेंच ना सुने। नहीं सर मेरा ये बिल्कुल नहीं है तो फिर सर। क्या? मेरा ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट केस है और आप लोगों ने हमेशा जो इतनी जिसकी फार रीचिंग पॉलिसी या अमेंडमेंट चैलेंज हो रही है सर, आज तक पाकिस्तान में कोई सक्सेसफुल चैलेंज नहीं हुआ है अमेंडमेंट का। इवन 21वीं 23वीं तरमीम वॉट एवर रीजंस वो डिसमिस हुई थी हमारी पिटीशन सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट केस है जो आप लोगों ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है आपके प्रेडिसेसर्स ने इस मौजूद आप कहते हैं फुल कोर्ट हो जी, उस फुल कोर्ट में हम भी होंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। व्हाई नॉट द अदर 6? उस पे मैं एड्रेस करूंगा सर। देखिए अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन सर मैं एड्रेस कर लूं फिर। देखिए मैं जो मेन चूज ना करे, उसूल पे बात करें, उसूल पे कर रहा हूं कि फुल कोर्ट हो वो डिसाइड ऑल द जजेस Exhaust now your own point of view. नहीं, लेकिन माय लॉर्ड मुझे सेटिस्फाई तो आपको करना है सर। Definitely, हम भी उसी लिए सर अब मैं आपको जी बिल्कुल मैं आप जवाब दूंगा सर। इसमें जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड, वो किस तरह से इसी आइन के तहत किया है। अगर आर्टिकल 20 की powers नहीं सर, देखिए जुरिस्डिक्शन आप यू ऑल हैव जुडिशियल पावर आऊंगा मैं उस पर। ज़ियाउर रहमान आपके केस में भी डिस्कस हुआ है और ये हमजा रशीद के केस में माय लॉर्ड हैज फॉलोड दैट जजमेंट, तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जी जुरिस्डिक्शन और जुडिशियल पावर में फर्क क्या होता है। जुडिशियल पावर तो आपके पास पावर है, ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द सुप्रीम कोर्ट हैज द सेम जुडिशियल पावर। जुरिस्डिक्शन जो होती है दैट इज कंफर्म्ड अंडर आर्टिकल 175(2) कि इसके देखिए अपेलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन होती है, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन जो डिवाइड। I think we can address this, look at this easily. आपने पहले 176 का हवाला दिया Constitution of the Supreme Court. My lord. So that's what makes up the Supreme Court. 183 देखें please. जी That talks about the permanent seat of जी, the जी. Supreme Court. जी 184 का पढ़ें, जी माय लॉर्ड। 184 पढ़ें, So proceed of the Supreme Court, ये सारे 184 पढ़ें। जी the Supreme Court shall to the exclusion of all every other court have एक सेकेंड है जी। जी। The jurisdiction under 184 vests with the Supreme Court. जी। It doesn't vest with the bench, it Yes. vests with the Supreme Court. Absolutely, my lord. 185 पढ़ें। जी सर। Again the subject to this article the Supreme Court shall have jurisdiction. Again, the Supreme jurisdiction Court rests with और the यही 186 में भी है। 186 अब आप सुप्रीम कोर्ट मैं जरा खत्म कर लूं, please. Let me वो डिफाइंड है जी माय लॉर्ड। You continue, इस तरह wherever the jurisdiction is vested, it is vested In the with the Supreme Court. जी। 186 देख लें, जी। 186, 187 देख लें। जी हाँ, sir. Now you come to 191A. और ये 188 भी है सुप्रीम 188, जी। all of them vest jurisdiction with the Supreme Court. एब्सोल्युटली माय लॉर्ड। Now, the 191A says that it says that these benches, pardon me please, माय लॉर्ड there shall be 191A. जी there shall be constitutional benches of the Supreme So Court. that means that the jurisdiction that is vested with the Supreme Court, there will be constitutional benches. Benches. And what will those benches hear? These 191A3 says this is what they will hear. Original jurisdiction of the Supreme Court ये under आप आ जाए ना, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench. जी. So jurisdiction is not vested with a bench specifically. जी. It's vested with the court. Court. And that jurisdiction is exercised
as per 191A with a bench. Yes. It's a simple, so the question really is that when you ask for a full court, again I say that is there a bar under this, any of these provisions which prevents the constitution of a full court? Absolutely not. There is no bar. उसकी वजह बताऊं If there सर? is no bar, जी. then a request for a full court is in line with the convention Yes. of this court, and there have been numerous occasions when a full court has been asked for. बिल्कुल सर. So when we know that this is in line with the, and we've relied on the last two cases, including the practice and procedure case, which conveniently is not properly reproduced, क्योंकि इसमें majority की opinion भी नहीं publish हुई भी PLJ में. उन्होंने इस aspect को देख के कहा था कि the full court is a necessity, and it is a necessity because it deals with issues pertaining to the court. So hence the full court, the formation of a full court is not really in debate. We did it in the practice and procedure case despite what the dissent may have said. That has now become part of the law. So the question then really is, as I understand it, is that your request for the full court and your request for a pre-26th Amendment full court. In my opinion, that is what you need to justify why a pre-26th Amendment full court. Anything you want to add in it? कुछ ऐड करना चाहते हैं या मैं सवाल करूं? सवाल आप ये कि आप 176 को पढ़ लें और उर्दू में तर्जुमा करें, हमें मतलब बता दें क्या है सर जैसे शेर का भी तर्जुमा, क्योंकि पूरी कौम देख रही है ना, उर्दू में तर्जुमा, बहुत से मेरे जैसे लोग वो इंग्लिश नहीं समझते. नहीं, शेर का तर्जुमा नहीं करा रहे आपसे. करा था किसी ने तो आवाज माइक जरा ले. शेर का तर्जुमा किया गया था, उसमें मुश्किल हो गई थी सर. The Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan. या Supreme Court of Pakistan जजों पे मुश्तमिल होगा जिसके known as the consist of the Chief Justice, जो मुश्तमिल होगा Chief Justice पे, known as the Chief Justice Pakistan, और जो judges, so many other judges और judges जो तय करेंगे Act of Majlis Shura Parliament, और until so determined, और जब तक वो फैसला नहीं होता एस में भी, और जो सदर साहब उसमें यानी इसका मतलब जो मैं समझा वो ये तो कि नहीं चीफ समझ जस्टिस और जितने भी बाकी जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट कहलाएंगे. बिल्कुल. So that is the Supreme Court. जैसे गवर्नमेंट के बारे में जी. मुस्तफा इम्पैक्स में डिफाइन हुआ जी. प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, बिल्कुल वो सर. गवर्नमेंट होती है. जी. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एंड द जजेस. अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट हो, जी. दूसरी तरफ आप महदूद करेंगे फुल कोर्ट उन 16 व्हाई नॉट द 24. मैं कह रहा हूँ फुल कोर्ट इस वक्त फुल कोर्ट जो देखें, as the dispensation stands today, the full court is Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. How many? 23 हैं 24 जज, ठीक है सर, 23 plus the Honorable Chief Justice. ये this तो is 176 की डेफिनेशन में पूरे जजेस आ रहे हैं. सब जजेस आ रहे हैं. मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, महदूद कैसे कर रहे हैं? महदूद उसको कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ वो एक्ट जिससे उनको तरमीम, उनको बढ़ाया गया उस तरमीम के तहत, ये एक्ट में जो तरमीम की गई जो जजेस के ऊपर एक्ट 97 का, उसके अंदर भी पटिशंस आपके सामने लगी हुई हैं जिसके अंदर उनको चैलेंज किया गया है कि ये इनको जो बढ़ाया गया गवर्नमेंट ने गलत भी है, तो वो उस वजह से फिर तो आपको रिक्वेस्ट ये करनी चाहिए कि पहले वो केसेस चला रहे हैं उनको डिसाइड करके वापस भिजवा दें ताकि हम वापस ओरिजिनल स्टैंड पे आ जाए. मैंने नहीं फाइल किया सर, हो सकता है वो करें. Until and unless they are declared their appointment is declared illegal, for all intent and purposes they are judges of the Supreme Court. That's all. बिल्कुल आप सही कह रहे हो. मैं एक जजमेंट आई बी फीलिंग इन माय ड्यूटी एज एन ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट. ये आपको पता है मुद्दा उठा था 1989 में, और अकरम शेख साहब बैठे हैं, उन्हीं के नाम से वो केस रिपोर्टेड है, PLD 18-9 सुप्रीम कोर्ट. उसके अंदर भी 3 जजों पे एतराज किया गया कि वो उस वक्त अपॉइंट हुए थे जब प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट हुआ, तो केयर टेकर जो क्या है 1989 सुप्रीम 1989 हाँ जी. जी पेज है PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट. इसके अंदर वो जो आप सवालात करें उसका जवाब है, मैं ऊपर पढ़ के पैरा 28 पढ़ूंगा. पेज 689 सर, नहीं ये है 689 सर जी. 689. आप कौन सा पैरा पढ़ेंगे? जी वो तुम ये माय लॉर्ड क्या है इस चीज में. अगर आप फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे तो उस अथॉरिटी का काम होगा जो बेंच
Because उनकी मर्जी है, वो देखेंगे सर, इसके अंदर आप यू कैन नॉट डिक्टेट, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा आप ये सर, नहीं कह सकते फला आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आप सिंपल कह सकते हैं कि जनाब हमें फुल कोर्ट चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए मैं उस पे आता हूं। कोर्ट क्या है, बिल्कुल ये सही। तो फुल कोर्ट तो डिफाइंड है जो अथॉरिटी हमारे पास यहाँ पे आपने तीसरी अथॉरिटी भी बना दी, एक चीफ जस्टिस बकौल आपके कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकता है, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, एक 191 A4 की कमेटी है जी। तो इन तीनों में से एक ने डिसाइड करना है, तो आप सिंपल रिक्वेस्ट करेंगे जी फुल कोर्ट दो। मैं तो कह रहा हूँ सर, आपने मेरी एप्लीकेशन आप देखिए फुल कोर्ट का है, लेकिन ये कहना 26th Amendment full court mark. जी। आप बता दें किसी एप्लीकेशन में, तो आई एम विद यू, अगर किसी भी एप्लीकेशन में कोई 15-16 एप्लीकेशन फाइल हुई है, किसी में भी ये नहीं कहा फुल कोर्ट मांग रहे हैं। मैंने कहा है सर मेरी एप्लीकेशन आपके सामने, आप देखिए मेरी एप्लीकेशन ये लेटेस्ट एप्लीकेशन है जी, मैं एप्लीकेशन सीएम देखिए, बात सिंपल सी है कि आपको पहले फिर उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से निकालना होगा। नहीं सर, ऐसे निकाल नहीं सकते सर, वो तो 209 से ही जा निकाल नहीं सकते, हाउ दे कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फुल बेंच। सर ये सीएमए जो है 39 मैं आपकी बात 100% मान रहा हूं, फुल कोर्ट मींस फुल कोर्ट, फुल कोर्ट जी। इट इज नॉट अ बेंच, चलो मान ली फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा सर, मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपकी निकाल लो इजाजत। जी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब आर्टिकल 203F देख लें सर आप, काइंडली सी आर्टिकल 203F। ये आपने ये जजमेंट तो साइड की है। मैं आ रहा हूं उस पे, ये मैं दिखा रहा था कि इसके अंदर वो सारे इश्यूज जो थे कि कौन से जज सुन, इसमें वो 22 भी पूरा डिस्कस हुआ है। इसके अंदर मैं जो बात कर रहा था उसमें ये था कि कुछ 3 जजेस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट वर अपॉइंटेड ड्यूरिंग अ केयर टेकर पीरियड व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट देयर। तो सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द कंक्लूजन कि नो गवर्नमेंट कुड बी, जैसे मुस्तफा इंपैक्ट्स में, कि कोई गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकती। तो अब उन पे गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने ये सीएमए डाली, ये वो जजमेंट है। माय लॉर्ड काइंडली सी, ये जजमेंट राइज कर रही थी जुनेजो साहब की गवर्नमेंट के उससे, उसका जो 5 उसका रिव्यू था ये, उसमें एप्लीकेशन डाली जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक प्रेस नोट उन्होंने दे दिया, प्रेस नोट। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ये प्रेस नोट गलत दिया आपने, और ये कहा कि नहीं वो तीनों जजेस भी मेंबर होंगे क्योंकि ओरिजिनल उस कोर्ट के वो मेंबर थे, तो आप नहीं कर सकते। इस पे ये एतराज हुआ। उस पे फिर उन्होंने दिया कि कौन से जज को बैठना चाहिए, कौन के नहीं बैठना चाहिए, किस वजह से नहीं बैठ, वो सारा इसमें डिस्कस हुआ है। और लीडिंग, इसमें माइनॉरिटी जजमेंट, लेकिन लीडिंग अथॉरिटी जो माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस शफीउर रहमान की है, उसमें जो उनके रेलेवेंट पोर्शंस, मैं उस वक्त जब मैं आऊंगा उस पर पढ़ के जैसे आपको बता रहा हूं कि जो आपके सवालात हैं उसका इससे जवाब होगा, और ये बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा। हो सकता है ये वो बात तो मैं जो बात कर रहा हूं उसके थोड़ा सा खिलाफ भी हो, लेकिन टू एज एन ऑफिसर कोर्ट आई हैव टू शो दिस जजमेंट टू योर लॉर्डशिप सर। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की जहां पावर को रिस्ट्रिक्ट किया, जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, सुप्रीम वो उसमें प्रोवाइडेड है। आप देखिए आर्टिकल 203F, Am I with Dr. sir? एक मिनट जी सर, 20 ये शरीयत कोर्ट का जो है। अपीलेट बेंच के जी हाँ जी, मैं उसमें आ रहा हूँ माइंड वन जी 203F निकाल दो ये। Any party, may with your lordship's kind permission, any party to any proceedings before the court under Article 203D agreed by the final decision of the court in such proceeding may within 60 days of such prefer an appeal to the Supreme Court. Appeal is provided to the Supreme Court, my lord, and Supreme Court 176. आगे सब अगर आप देख लें, लेकिन इसमें तो एक बेंच बनता है। जी आ रहा हूँ उस पे, वो दिया हुआ है उस पे। काइंडली सी, काइंडली 203(5) my lord, reference to clause 1 and 2. अब 1 and 2 कहता है appeal to the Supreme Court, 2 कहता है an appeal shall lie to Supreme Court of any judgment, final or sentence of the Federal Shariat Court. Again appeal should lie to the Supreme Court, my lord. अब Supreme Court को define कर रहे हैं कि what is the meaning of Supreme Court, वो 5 में The reference in clauses 1 and 2 to the Supreme Court shall be construed as reference to the Shariat Appellate Bench. Shariat Appellate Bench. कि यहाँ उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खुद कन्फाइन कर दिया, अपील तो लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन कहाँ, टू द शरीयत अपीलेट बेंच, जहाँ रेफरेंस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि जी वो है। देखिए मान लीजिए ये तो आपके अगेंस्ट होगी ना बात। 191 में भी तो उन्होंने बता दिया कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो ये केस नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है, इक्विवेलेंट टू 203। उसमें ये नहीं कहा, देखिए उसमें देखें आप पढ़ लें रेफरेंस उसमें सुप्रीम आपने जो आप shall be construed as a reference to the Shariat Appellate Bench. कंस्टिट्यूट ठीक है सर, यहाँ लेकिन आपके अल्फाज ये नहीं है 3 में सर, अल्फाज नहीं है, मगर उसमें तो लिख दिया ना ouster clause है, no court other than constitutional bench shall hear the बेंच। जब भी तो हम आपसे फुल कोर्ट मांग रहे हैं सर, हम बेंच तो नहीं मांग रहे आपसे, ये तो नहीं कह रहे कि रेगुलर बेंच में को भी रेगुलर बेंच में केस चल सकता है। शरीयत अपीलेट बेंच लिखा हुआ है इसमें भी, सब क्लॉज आर्टिकल सब 5 में।
203F में भी फुल कोर्ट में हियरिंग हो सकती है शरीयत एपलेट बेंच वाले की। नहीं सर, उसमें क्योंकि वो डिफाइंड है कौन जजेस होंगे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। 3 मुसलमान जजेस होंगे, 2 उसमें ये होंगे, और बेंचेस का उसका प्रोविजन इसी में दिया हुआ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस बनाएंगे, वो नया रूल्स के अंदर, पुराने रूल्स में भी था, अब भी है सर। उसमें कोई लिमिट नहीं है, यू राइट जी वो बेंच पे आ गई बात। जी, बेंच पे आ गई। मैं कह रहा हूँ कि जहां कन्फाइन किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, अपील इज टू द सुप्रीम कोर्ट बट हियरिंग इज बाय द बेंच, बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ आपके जो 191A3 में इस तरह की बात नहीं की हुई है सर, काइंडली सी। उसमें कहा नो अदर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेइंग कि आपको रेगुलर बेंच वाले भी सुन सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे आपके सामने। हमारी मुद्दा जो है आपके सामने वो ये है कि फुल कोर्ट भेजें, क्योंकि आप अगर कल को चले क्वेश्चन है, कल को अगर सुप्रीम जुडिशल कमीशन बैठ जाए और वो कह दे कि सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस जो हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, सो ठीक है, वो फिर सही। आपको कबूल होगा। बिल्कुल सर, वो जुडिशियल कमीशन कहते हैं सब्जेक्ट टू आर जो हमारी चैलेंज टू द 26th अमेंडमेंट सर, क्योंकि हमारा मेरा जो चैलेंज मेरी पिटीशन में, इसको आप उलट कर देना। जी। अगर जुडिशियल कमीशन किसी को ना किसी को भी ना एड्रेस आप मेरे करे, क्वेश्चन का जवाब दे दें सर। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि आप वो कर दें, लेकिन हमारा जो मतलब ये है कि जी तो उन्होंने कह दिया ना कर देंगे। आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना रहे तो नहीं, लेकिन हमारा चैलेंज ही जुडिशियल कमीशन के ऊपर है, उसके ऊपर कि ये जुडिशियल कमीशन जो काम आप कहते हैं कि चूंकि जो बेनिफिशियरीज हैं या इफेक्टिव्स हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, आप इस तरह ना समझे, चलिए समझ में, जो किसी भी तरीके से जिस पर 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू होता है, चाहे उनके अपॉइंटमेंट के, चाहे अपॉइंटमेंट एज जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। मैं ये इस तरह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई तरीका तो बताएं क्या करना है। इसमें आप दूसरी तरह कर दें, सपोजिंग दैट द जुडिशियल कमीशन डजंट नॉमिनेट एनीवन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, जी by not nominating anyone to the bench, is the jurisdiction of the Supreme Court finished? नो, एब्सोल्युटली नॉट। So if they opt not to nominate वो तो जुडिशियल anyone, पावर जुडिशियल it is an inherent power, so जी। that is just about constituting द बेंच। जी हाँ, benches. बिल्कुल, मेरा यही है That power will go away. That means no one will hear those cases because they decided not to nominate anyone. जी, देखिए यही है ना, 184, 185, 186 टॉक्स नहीं, अबाउट इस द तरह की सुप्रीम। सिचुएशन हो जाए तो बिल्कुल full नहीं court सर, बन सकता आप देखें 184, है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना हो अगर, जी। तो फिर जाहिर है जब तक वो नहीं बनती सुप्रीम सर, कोर्ट फिर अपना अगर खा- fall back आप देखें, full court है तो फिर it means कि प्री 26 आप देख there लें is a सर, difference. प्री 26 में भी हर केस में तो फुल कोर्ट नहीं बनता था, किसी में 5 जजेस बैठते थे, 8 बैठते थे, 9 बैठते थे, जो भी था, चीफ जस्टिस की अगर हम सवाल आपकी थी। बात मान लें जी। कि भाई ये बेंच इसको नहीं सुनना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, हम तो सिंपली उठ जाएंगे कि सिंस वी हैव नो जुरिसडिक्शन इन द मैटर वी कैन नॉट पास एनी ऑर्डर। सर, मैं- देखिए, जिस कोर्ट को जो इख्तियार नहीं होता या जिस बेंच को, वो मां सिवाय केस वापस करने के लीगली आप इस मुझसे एग्री करेंगे कोई और ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते। नहीं सर, जब मुझे जुरिसडिक्शन सर, मैं मैं आपसे इस पे एग्री नहीं कर सकता, उसकी वजह बताऊं क्यों। तो अगर मैं इसकी वजह बताऊं फिर क्यों। मैं सुनूंगा, अगर नहीं इख्तियार तो नहीं सुनूंगा। मैंने अपने जो मैं हम्बल सबमिशंस में कोई ये बात नहीं कही कि आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं है। अंडर 191 एज इट स्टैंड्स टुडे, सब्जेक्ट टू आवर चैलेंज टू द होल 26th अमेंडमेंट, इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास तो ये पावर है। हम कह रहे हैं कि आपके पास एक पावर और भी है, कि वो है कि टू इफ यू कम माय लॉर्ड कम्स टू द कंक्लूजन कि आप फुल कोर्ट बना। अगर आप नेक्स्ट तीसरी बात है, अगर हमारे पास पावर है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हम क्यों नहीं सुन सकते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? इस पे बात करें। मैं तो कह रहा हूं आप सुन सकते हैं, मैं तो वेरी रिक्वेस्ट यू मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल कोर्ट सुन ले। ये आप कह सकते हैं, जजेस का तादाद बढ़ा। जी मैं यही कह रहा हूँ आप ना, फुल कोर्ट फुल कोर्ट का क्या मतलब है सर, यही मतलब होता है देखिए ना। ना, अब आज आपने बात चेंज की, आज पहली मर्तबा ये स्टांस आपके मुंह से आ रहा है कि ठीक है, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर बना भी है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो ये सुन ले, लेकिन साथ और जजेस बिठा दे। नहीं, मेरा मतलब है फुल कोर्ट सुने। देखिए मेरा ये मतलब नहीं, बेंच, देखिए मैं बात कर रहा हूँ 191A करता है, बेंच की बात करता है। जी, complete your own points. इसलिए वो आपको जजमेंट बता रहे थे, वो बता दे, वो रह जाते हैं, यू ट्राई टू स्टार्ट, बट वो आपकी जजमेंट थी सर, फुल कोर्ट जो भी आप बता दीजिए ताकि वी कैन नोट दैट जजमेंट्स आल्सो। बात सुने, बुला रही हैं। ये हटा लेना सारी। It's PLJ 2024 Supreme Court. ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जी वाला हाँ, है। But इसमें majority की opinion missing है, so you have to pull it out of जी the. हाँ, वो है मेरे पास सर, मेरे पास तो कॉपी, आई अपोलोजाइज, मैंने बनाई नहीं, लेकिन
मेजॉरिटी This की is ओपिनियन इसमें भी तो मिसिंग है. है. Justice Mansoor Ali Shah की opinion इसमें missing है, which is signed by जी. all the majority जी हाँ, judges. वो That's मिसिंग है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप माय लॉर्ड. And the dissent is also missing. जस्टिस आयशा मेरे शाहिद वहीद की भी जो नोट है वो भी नहीं है Both the dissents जी, are but what dissent is not there sir. जैसे हसन अजहर रिजवी की जजमेंट प्रोड्यूस्ड है इसी के अंदर. जी. सर बिफोर आई, अगर आपकी इजाजत हो तो आपने कोई बात कही थी माय लॉर्ड मिस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कि जब हमने चैलेंज किया कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून आप इजाजत ना दें पार्लियामेंट को अपने इख्तियार अपने इंटरफेयर करने का, हमारा था कि 191 में आपके पास पावर है पार्लियामेंट की, हमारा मुद्दा था जो रिजेक्ट हुआ. तो आप माय लॉर्ड ने बड़ी एक बात कही, अगर मेरी इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं आपकी. जी पढ़िए. ये पेज 210 पे. पैरा 13 में से आपने कहा स्टार्ट विद द पैरा के बी रिमेन्ड अनसक्सेसफुल परसुएडिंग योर लॉर्डशिप्स टू दैट हाउ द एक्ट इन्फ्रिंजेस द कॉन्ट्रवीन्स द फंडामेंटल राइट्स. सर इसमें 5th लाइन अगर ऊपर से आप देख लें पेज 210 पे पैरा 13 से शुरू हो रहा है 13 to 209 से, लेकिन द रेलेवेंट पोर्शन व्हिच आई वांट टू रीड, माय लॉर्ड सेड कि वी वर अनएबल टू परसुएड योर लॉर्डशिप्स टू कन्विंस दैट दिस एक्ट वाज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसमें 209 से आ रहा होगा ना फिर. जी 2009 से आ रहा है, 209 से आ रहा है. पैराग्राफ 13 से. It was argued that मैं पढ़ लूँ सर ऊपर से पूरा पैरा पढ़ देता हूँ सर इसमें. The learned counsel of the petitioner remained unsuccessful in persuading me to how the act infringes or contravenes the fundamental rights of any person, how the same is against the public interest. In order to complement and substantiate the plea of ultra vires, it was argued that this act is against the independence of judiciary, poses an obstacle in the access to justice, constitutes dictation to the Supreme Court, clips off the powers and authority of the Chief Justice of Pakistan as an intrusion into the internal affairs of the apex court. In my view, now this is what I want to read, sir. In my view, such apprehensions are misconceived. The petitioner's counsel had further argued that once the parliament is allowed to regulate the Supreme Court's internal working powers and functions, then there is a strong possibility and likelihood that amendments of the same variety will be made to further intrude and encroach upon the independence and jurisdiction of this court, sir. Kindly see. In my approximation and far-sightedness, if any such amendment is made or attempted to be made in order to compromise or impair the independence of the judiciary or to disrupt the fair and stream of the administration of justice or cause any hindrance in the access to justice, the Supreme Court, being the custodian of the law and the constitution, is here to deal with the same, and there is no cause for concern in this regard. At this moment, the entirety of the judicial and administrative powers remains vested in the Supreme Court, and the advent of the act neither involves any outside entity or any external element capable of disturbing or interfering with the internal workings of the court, nor does it affect any of the procedure matters or committee decisions of the Supreme Court. The superior courts have time and again pronounced that any law which is inconsistent with and contravention of fundamental rights or which takes away or abridges such rights void to the extent of such inconsistency or contradiction. In my perception, except to the extent of right of intra-court appeal, with respect I will deal in succeeding portion of my reasoning. The act is neither hit by the doctrine of colorable legislation, nor is it ex facie discriminatory or violative of any constitutional provision. It is well settled the malafides cannot be attributed to the legislature. In my view, the procedural stipulation and conferral of rights of appeal with prospector do not violate any fundamental, nor do they offend any provisions of it. The Parliament has not curtailed the jurisdiction of this court. By dint of colonial legislation, rather the jurisdiction of this court has been enlarged in larger public interest by means of the act, as stated in the duty of the court to normally lean in favor of constitution. My lord, kindly see, my lord. आगे भी पढ़ लें, जी हाँ. please, para 26 भी पढ़ें. जी आ रहा हूँ. पैरा 26. पैरा 26. जी हाँ, ये आ रहा हूँ, hearing by the full court. वो तो मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन मैं ये पढ़ना चाह रहा था. इसको भी पढ़. My lord, पैरा 26 में my lord deals at सब heading दी हुई है, hearing by full court. कि why full court? But let me repeat that this is the additional note of an honorable judge who assigned the majority opinion. You should have brought the majority opinion. It is missing in this print, which is quite surprising. उसमें सारा ये they've है मेरे पास discussed उसमें लेकिन इसमें डिस्कशन नहीं है उनके जस्टिस मंसूर अली शाह के. बिल्कुल है, उसमें भी है मेरा ख्याल है इतना. फुल कोर्ट का नहीं है माय लॉर्ड. आप वो ले आते हैं, जजमेंट तो आप कंप्लीट और राइट करते ऑफ हैं ताकि अपील पे उसको भी देख कम है लें. उसमें. मैं ले आऊंगा सर, कॉपी बना लूंगा आपके लिए. मेरा ख्याल है रिट्रोस्पेक्टिव जो अपील है वो तो उन्होंने अलाउ किया था. उस पे उन्होंने एंट्री 55 58 वो हम देख लेंगे, आप ये पढ़ लें. जी हाँ.
During the midst of arguments, it was further articulated by learned counsel that if the case is heard by the full court and the law is declared intra vires, then the petitioner would not be able to file an intra-court appeal for challenging the judgment. In my view, even at the time when the initial 8-member bench was constituted to hear the aforesaid petition, the requisite number of at least 9 judges was not available in the total strength of this court to hear the intra-court appeal, if any, filed against the judgment rendered by the 8-member bench. However, when the present Chief Justice, Justice Qazi Faiz Isa, assumed office, 2 practical options are available to him: either to reduce the size of 8-member bench by reconstituting a 5-member bench in order to preserve the right of appeal, or alternatively to constitute the full court. Again, in my view, the Honorable Chief Justice rightly constituted the full court to hear all such petitions as on a priority basis. Even at the initial stage of proceeding, the full court had been fervently requested by almost all the learned counsel, including the learned AJP. One more important aspect and must be kept in mind is that the matter before this may pertain to examination of vires of the law regulating its own practice. So in my view, it was compos mentis to constitute a full court. रैशनल डिसीजन से ही मैंने उससे चेक किया, मैं पढ़ डिक्शनरी में देखना पड़ा सर मुझे तो, माय लॉर्ड सॉरी. Composite to constitute a full court for drawing on the collective wisdom of all the judges regarding the legislative competence and constitutionality of the act which provides a right of intra-court appeal. Conversely, had the act been declared ultra-vires by a majority of judges, then how could the intra-court appeal have been filed by those aggrieved persons supporting the law when the law providing the right of intra-court appeal was struck down by the court and no longer existed, leaving only the remedy of review? So in that particular scenario too, the situation would have been the same. Therefore, when any particular list has been decided by the full court with the collective wisdom of all the judges with various notes of assent and dissent, then the question regarding the deprivation of right of intra-court does not have much significance. Indeed, it was prudent and quite logical to constitute the full court to decide the legitimacy and future of the act in question, rather than constituting a bench first with limited number of judges at the original site and then larger bench on the appellate side. In my view, propriety demanded that this court should first resolve the uncertainty regarding the future of Supreme Court Practice Procedure Act 2023 as soon as possible, instead of gathering the wisdom and insight of judges in 2 phases in preference to the collective wisdom rendered by the full court. That is the finding of my lord said, collective wisdom of the thing. और ये आपने कहा, आपने act collective wisdom of all the judges. जी ठीक, बिल्कुल सही, सिर्फ सही. कलेक्टिव, अब इसमें क्यों देखें, जो बात सर है कि आपने कहा अब इस वक्त मैं अगर फर्ज करें आपने ऑर्डर पास करते हैं हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ, आई कैन नॉट अपील. वो इसीलिए तो कहा है ना कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए. अपील नहीं अगर वो हो सकती तो उसका कोई फर्क नहीं. बिल्कुल फर्क पड़ता है, यही बात हो रही थी. फर्क इसलिए पड़ता अगर आपने ये बेंच अभी आप अगर फुल कोर्ट नहीं सुनता, कलेक्टिव विजडम नहीं आती, तो फिर मेरे पास अपील का राइट है. तो आप कह रहे हैं कि रिड्यूस कर दे 5 पे ले जाए इस बेंच को. आपकी लेकिन हम तो फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर. देखिए आप बात कर, इस वक्त एज प्रेजेंट तो नहीं हो सकती अपील फाइल, तो अपील तो वैसे ही ग्राउंड नहीं है. यहाँ आपने कहा अपील का ग्राउंड उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा पार्टी के पास जब कलेक्टिव विजडम आ जाती है. फिर जरूरत ही नहीं होती, सारे जजों ने बैठ के फैसला करते, उसकी क्या अपील होगी. बट माय लॉर्ड मिस्टर आयशा मलिक, आई एम सॉरी, आई ब्रिंग इट आपके लिए करा लूंगा कॉपी. उन्होंने इसको कलेक्टिव विजडम की बात की अपने पैरा 47 अपने डिसेंटिंग नोट में. जी मैं पढ़ूंगा तो जब नोट आएगा तो जी आपने लिखा है कलेक्टिव, मतलब तो मैं कॉपी करा लूंगा इसकी, अगर देख लीजिए. क्योंकि उनके तो डिसेंट थी ना, उसमें हो सकता है नहीं. उन्होंने कलेक्टिव विजडम की बात की है, लेकिन उसके बावजूद अपील का राइट तो नहीं हो रहा. The point taken from this case is that in a matter regulating the internal practice and procedure, My lord. it was in the wisdom of the majority judges thought that a full court should be constituted. Here we are looking at a constitutional amendment. जी. So your argument is that applying the same wisdom where we are looking at something bigger, and जी. not just a statute, but Exactly. an amendment to the constitution, there should be a full court. देखिए, The question that only needs to be addressed is your request for the pre-26th Amendment जी. full court. Please address that argument. जी बिल्कुल. माय लॉर्ड बात को जजमेंट स्ट्राइक डाउन किया ना, वो वाले केसेस में 4 लोगों ने जो था जो डिसेंट किया है, जिसमें जस्टिस आयशा भी थी, वो तो मुनीब भी थे, तो स्ट्राइक डाउन कर दिया वो तो लॉ को. जैसे We are bound by what the majority. मैं आप बता रहा हूँ कि Our opinion is just a dissent. That's not the point. आज केसों में बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसेंट होती है, वो भी नहीं, वो कलेक्टिव विजडम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. तो माय लॉर्ड ने भी कलेक्टिव विजडम की बात की है. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. मुझे आई एम सॉरी, आई कुड नॉट रीड दी. मैंने इनको कह दिया
note of मैंने Justice- कहा था, लेकिन मैं a मुझसे गलती dissenting हो गई, note of Justice Aisha और मैं आज Justice फोटोकॉपी Munib। करा लूंगा सर आप लोगों के लिए। ज़ुबैर साहब, एज फार आई एम कंसर्न, मैं पास्ट में तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आज बैठा हूँ। आई एग्री विद यू, कलेक्टिव विजडम होना चाहिए, ठीक सर। लेकिन कलेक्टिव विजडम तो फुल कोर्ट, मुझे आप ये क्लियर करवा दें, व्हाई फुल कोर्ट ओनली 16, व्हाई नॉट 24, ये जरा आप हमें तो बता दें ना सर क्योंकि उनका मैं एग्री करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। 24 ठीक, अगर चार और पॉइंट है तो भी बिठा देना। मैंने वही जजमेंट जो आपको साइट कर रहा था, हो सकता है वो मेरे खिलाफ जाए, लेकिन एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट मुझे देना कि अगर कोई लीगल ऑर्डर चैलेंज हो रहा है तो कौन सुन सकता है, वो है वो जजमेंट 89 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बहुत सारी हैं that this is a circular argument that you cannot rely on the amendment that you are challenging. जी. We've said it in several judgments, full courts have said. जी. And those decisions still stand, including the Sindh High Court bar, that the district bar case, that when you are challenging an amendment, you cannot rely on that amendment to uphold it or to discuss its validity. So by आप that देखिए उसके token, अंदर जो the question is, will it apply here as well? जी, सिंध हाई कोर्ट में क्यों द फुल कोर्ट डिड नॉट इंक्लूड दोज जजेस, कुछ जजों को इंक्लूड नहीं किया गया था सिंध हाई कोर्ट बार, दिस इज 2000 PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 879, और उसकी वजह उन्होंने ये दी कि हम कुछ जजों को नहीं इंक्लूड कर रहे बिकॉज दे हैड वायलेटेड द कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ नॉट टेकिंग द ओथ अंडर द पीसीओ। तो पीसीओ चैलेंज पे था, उस जजमेंट को उस दिन भी याद किया गया डिस्ट्रिक्ट बार के, उसको जैसे बात नहीं सर, ये सिंध हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट बार के, वो उसमें ये बात बताई गई कि सिंस they have took oath under PCO, therefore they are no more judges. नहीं सर, नहीं ये बात लिखी नहीं सर, ये नहीं, विद utmost respect, ये नहीं कहा, मैं पढ़ दूंगा आपको। I've clarified in my judgment। मैं आपसे दरखास्त, जी मैं दरखास्त करूंगा, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा सर बिल्कुल। वो उसमें क्या उन्होंने कहा था, क्योंकि पीसीओ अंडर चैलेंज है, इसलिए वो नहीं बैठे हैं। उस वक्त पीसीओ डिक्लेयर नहीं किया गया था जब तक फैसला नहीं आया। No more judges, the moment they took oath, there were no more judges of the विद utmost respect सर, वो फैसले के बाद हुआ, जब केस बेंच बनी थी उस वक्त उनको नहीं किया गया, इसलिए उनको निकाला गया था। नहीं सर, मैं वो पढ़ दूंगा पैसेज आपको कि उनको क्यों नहीं बिठाया गया बेंच, वो उस वक्त तो फैसला आया नहीं, वो तो डिक्लेरेशन बाद में आई है कि वो जज नहीं है। मैं सब जाते हुए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बेशक जवाब अगली पेशी पे दे दें। जी आप पसंद करें या ना करें, आर्टिकल 191A मौजूद है, बिल्कुल जी, आप असद अली केस पे रिलाई कर रहे हो, पैरा नंबर 32 पे रिलाई करते हो, पैरा नंबर 32 में मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स थे, हर जज के लिए कोई ना कोई कंस्ट्रेंट था, बिल्कुल सर। तो वहां पे जो रिमेनिंग 10 जज रह गए थे उनके बारे में हेड किया गया कि यही कोरम ऑफ फुल कोर्ट है। जी, अब फुल कोर्ट का लफ्ज जो है वो आर्टिकल 191A में एलियन है, जी सर, वहां मौजूद नहीं है सर। आप आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को भेज दें, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना दें, आर्टिकल 191A का 1 पढ़ें तो अब चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं रहा। 8 जज जो बैठे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा है। बिल्कुल सर, वी आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक सर, अच्छा, ये वो जज हैं 8 जो 26वीं तरमीम से पहले आए थे। बिल्कुल सर। 7 और जज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा है, जिनको जेसीपी ने डिटरमिन किया है, नॉमिनेट किया है 191A में। अलॉट, उनके बारे में आपकी रिजर्वेशन है कि वो 26वीं तरमीम का केस कैसे सुन सकते हैं कि वो आए ही 26वीं तरमीम के बाद हैं जी। उनको आप शामिल नहीं करना चाहते, कह नहीं रहे लेकिन चाहते ही हैं कि वो शामिल ना हो इस बेंच में। आप सब साहिबान कहते हैं कि 26वीं तरमीम से पहले जो जज रह गए उनको शामिल करें, अलॉट, उसके लिए आप आर्गूमेंट देते हैं कि जी जुडिशल ऑर्डर के जरिए कर दें और चीफ जस्टिस को कह दें कि बना दें। जितने प्रेसिडेंट आप ला रहे हैं वो ना प्रैक्टिस प्रोसीजर उस वक्त था ना 26वीं तरमीम थी, उस वक्त चीफ जस्टिस के पास मैटर चला जाता था, लार्जर बेंच बन जाता था। अब जब ये कानून मौजूद है, अब प्रैक्टिस प्रोसीजर जब आया 23 में आया सर, उस वक्त भी 26वीं तरमीम नहीं थी सर। अब भी 26 तरमीम के अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं। बिल्कुल सर, बात वही है कि पसंद हो या ना हो हमें चलना है। बिल्कुल सर। तो अब ये जो 8-7 जज बाकी बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो नहीं आप लाना चाह रहे। जो 26वीं तरमीम के पहले जज मोहतरम साहबान हमारे सीनियर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा नहीं है। 191A के अंदर एक कदगन है कि इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा, कोई और बेंच नहीं सुन सकता। जैसे शरीयत वाला केस शरीयत बेंच सुनता है, यहाँ पे अगर जेसीपी ने वो जज नॉमिनेट ही नहीं किए, डिटरमिन नहीं किए एज
मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो उनको किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस भी शामिल नहीं कर सकते फुल कोर्ट के लिए। तो असद अली वाले केस के पैरा 32 में अगर रिलाई करें तो इस सिनेरियो में और इन कंस्ट्रेंट्स के साथ आर्टिकल 191 के होते हुए क्या आप नहीं समझते कि ये 8 जजेस ही फुल कोर्ट के कोरम को सेटिस्फाई करते हैं? इस सवाल को ले जाइए। जी, बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अगर वो फुल कोर्ट अगर वो होगा तो फिर वो 15 साथ भी आने चाहिए। थैंक यू माय लॉर्ड, पेश है।